third law of thermodynamics. Yes. So what is non-spontaneous reaction and spontaneous reaction? What is non-spontaneous, Nancy? जिस रिएक्शन को बाहर से एनर्जी और हीट दी जाती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है. ठीक है. What is spontaneous, Savita? जिसको बाहर से हीट नहीं दी जाती है. The reaction which occurs on its own, it does not require the presence of external agency. Yes? Yes. Yes. Okay. Now, Komal, what is entropy? Jaldi, jaldi. What is entropy? एंट्रोपी को किस साइन से, किस उसका सिंबल क्या है डिनोट करने का? व्हाट इज एंट्रोपी? यस, एनीवन एल्स? शिवम, डू यू नो व्हाट इज एंट्रोपी? नो मैम. ओके. नैन्सी? Dispersal of energy in the form of thermodynamics. ये क्या बात हुई? इन द फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डिसऑर्डरनेस ना? डिसऑर्डरनेस. यस. Yes. यस. मींस गैस एक्सपेंड होती है. होती है. क्यों होती है? एंट्रोपी बढ़ रही है. एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब डिस्पर्शन बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है. ऑर्डरनेस क्या होती है? एक जगह सीधे शांति से बैठे रहो. डिसऑर्डरनेस मतलब उस ऑर्डरनेस का ब्रेक हो गया तो डिसऑर्डरनेस होगी. ठीक है. सो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी. वेरी गुड. देन गैसेस की सबसे ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा. यस. ओके. अभी समझ आया एंट्रोपी? एंट्रोपी को बोल मैम एक बार रिपीट कर देना मैम. यस. एंट्रोपी हमने कल पढ़ा था. तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस. मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस. दिस मीन्स अगर कोई सिस्टम ऑर्डर्ड है, जैसे सॉलिड में molecules are very 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 close, there is interaction between them, they are closely packed, है ना? so what happens कि इसमें कोई चांस नहीं है कि ये molecules में disorderness हो. but when you see what gas, molecules are very very far apart. This means what? There is disorderness. Is there any orderness in gas molecules? दिख रही नो है? मैम. No. So what does this mean? This means कि entropy increases or entropy of gas is very very high. Okay. Now हमें देखना था, हम ये देख चुके थे ऑलरेडी कि एंट्रोपी चेंजेस अलग अलग प्रोसेसेस में कैसे होता है. तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल देखा था, देन एडियाबैटिक देख लिया था. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आइसोथर्मल मिक्सिंग ऑफ गैसेस. आइसोथर्मल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, it is not changing. So what you are taking? You are taking 2 glass flask जिसमें एक A है एक B है, उसमें आपने आइडियल गैस भर दी है. Na are the moles of Na, मतलब A गैस के आइडियल गैस के मोल्स है, B NB. ठीक है. वॉल्यूम VA है and VB है. They are connected by stop cock. Okay. Now what will happen? Since it is an isothermal, you will take the system, immerse in thermostat. What is thermostat? That instrument which will keep the temperature constant. जब आप open करोगे इसका cork, what will happen? 2 gases, A and B, they will mix spontaneously. Means आपने कुछ नहीं किया. You just opened the flask. You haven't give any external force or any energy or anything to make the reaction occur. It occurs spontaneously. So what will happen? After some time, molecules of A and B will mix. After mixing, the gas will occupy a final volume of VA and VB. Why? A and B के molecules mix हो गए. Therefore,
the mixing process can be assumed to be a combined effect of A molecules and B molecules के. So final volume of it will be VA plus VB. Initial volume VA VB था. So आप कैसे represent करोगे? So equations for isothermal entropy changes this. That is, S is entropy. Delta means change in entropy. VA plus VB for A molecule. A gas के लिए, B gas के लिए यहाँ VB, A के लिए यहाँ VA. So total entropy change for mixing of process is equals to the sum of entropy of expression of what? Expansion of A and B. Yes, total entropy दोनों के expansion का sum होगा कि नहीं होगा? दोनों gases expand हो रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So what will be this? Sum of these two equation. So what is constant? 2.003 is constant and R is also constant. So बाकी चीजें जो बची उसको आप क्या करोगे? Equals to sum करके लिख दोगे and S mixing जो होगी आपकी A and B की mixing होगी. So when you will do what? In mixture of gases, the mole fractions of gases would be what? Mole fraction क्या होता है? क्या होता है mole fraction? Mole fraction किसी को पता है क्या होता है? Mole fraction जब हम solutions पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, आप यस सविता पता है? Na upon Na plus Nb. That means total number of moles of that molecules upon divided by what? Total numbers of जितने molecules present है. So mole fraction of A gas का क्या होगा? We are taking in terms of V, that is volume. So VA upon दोनों का volume. VB का क्या होगा? VB upon दोनों का volume. Now you have to substitute equation 4.26 and 2.7 in which 2.5. So you have what? क्या हो जाएगा ये? VA upon VA plus VB. अगर आप इसको ऑपोजिट कर दोगे तो क्या ये 1/x से हो जाएगा? अगर इसको ऑपोजिट कर दिया तो होगा ना? आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है VA plus VB upon VA की. सो क्या उसको हम 1/x से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, yes, ma'am. Yes. Yes. So 1/x से 1/xb and then when you will calculate what? Anti-log आया, log आया. So जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका r कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है. इसको आप लिख सकते हो कैसे? माइनस में, क्योंकि माइनस मीन्स होता है 1/this. सो आपने इसको माइनस के टर्म में लिखा, माइनस आपने कॉमन ले लिया, आपकी ये इक्वेशन आ गई. दैट इज द इक्वेशन ऑफ S, दैट इज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस. ओके, ये बात समझ आई? ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है आपको न्यूमेरिकल में कि मान लो हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस मिक्स हो रही है, उसकी नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग. सो यू नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला. ओके, व्हाट यू हैव टू नो? मोल्स दिए जाएंगे log XA log XB. ठीक है, समझ आ रही है बात? Yes. Now expansion and heating of ideal gas. So expansion and heating is nothing but expand कब होती है गैस? जब आप उससे प्रेशर कम करते हो. कंप्रेस कब होती है? जब प्रेशर आप देते हो. So you have to consider a system. We have taken a system where only one parameter, that is volume, is allowed to change during the process. So in thermodynamics, more than one of the thermodynamic parameter can change. That is temperature pressure, temperature volume, volume pressure, temperature pressure. ठीक है, कोई जब एक से ज्यादा पैरामीटर आपके चेंज होते हैं, that process is known as composite process. So in a composite processes, एक सिस्टम आपने लिया है जो कि कैरेक्टराइज है, इनिशियल स्टेट है इसकी V1 T1, दैट इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. फाइनल स्टेट इसकी V2 T2. दैट इज इन दिस केस बोथ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डिफरेंट इन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, ऑफ कोर्स. नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, या आपको जब एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, सो व्हाट विल बी दिस, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है कि सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, सो व्हाट इज स्टेट फंक्शन? What is a state function? मैम जो स्टेट चेंज होने के डिपेंड करता है. Yes. कहीं सॉलिड से लिक्विड हो गया, हो सकता है.
ठीक है, आपने ये बात सही बोली कि स्टेट पे डिपेंड करता है ना, स्टेट पे डिपेंड करता है मींस इट डज नॉट डिपेंड कि रिएक्शन किस पाथ से जा रही है। ठीक है, आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो आपकी इनिशियल डेस्टिनेशन जो है और जो फाइनल है, दैट इज द स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है कि आप इनिशियल डेस्टिनेशन से आपकी जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उसको किस किस पाथ से लेके जा रहे हो। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, मान लो आप मध्य प्रदेश से जा रहे हो अमरकंटक, ठीक है, आपकी मध्य प्रदेश क्या हुई, इनिशियल स्टेट हुई, अमरकंटक क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। नाउ द रूट विच यू विल फॉलो, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी पाथ फंक्शन। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात? स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है? यस मैम। So entropy is a state function. That means it will depend upon the state only. State मतलब that is V1 T1, V2 T2 and V1 T1 अगर change हो रहा है तो क्या? So we can achieve the given changes in a thermodynamic parameter of system by considering a reversible isothermal expansion. Reversible, that can be reversed. Isothermal, that means temperature is constant. So expansion means V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है at a temperature T1 followed by reversible heating means ये जो चेंज हो रहा है आपका V1 से V2, इसको आपने फिर से हीट करोगे, so gas at a constant volume V2 आ जाएगी, final temperature will be T2. and total entropy क्या होगी, the total entropy would be the sum of two contribution. ठीक है, and then equation जो आपकी ऊपर दी हुई थी उसको कैलकुलेट, उसको यूज करके यू विल कम एट द फॉर्मूला कि डेल्टा एंट्रोपी, डेल्टा चेंज मतलब ये चेंज होता है डेल्टा, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम अपॉन द इनिशियल वॉल्यूम। सो यू आल्सो नो दैट कि फर्स्ट लॉ से आपको पता चलता है U इक्वल्स टू Q प्लस W, एंड सिंस सेकेंड स्टेप के लिए प्रोसेस इज रिवर्सिबल हीटिंग गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज 0 which means work is 0, and in such a case U equals to Q plus W होता है, so W is 0, so what will be, Q equals to energy, है ना, U is internal energy and Q is what, heat. Now you also know that कि specific heat at constant volume, it gives you what, this is what, specific heat at constant volume, what it gives, Nancy, Komal and others, क्या देता है ये, फर्स्ट लॉ में पढ़ा था ना, स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। सो व्हाट, कांस्टेंट वॉल्यूम आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, और अगर प्रेशर तो कांस्टेंट है तो वो एंथैल्पी के बराबर होता है। सो आपको ये भी पता है ऑलरेडी। नाउ यू कैन व्हाट, you can rewrite the equation or you can rearrange it, and delta S is also entropy, आपको बता चुकी हूँ मैं, उसका फॉर्मूला होता है Q by T, है ना। So Q equals to what, CVDT upon T, energy या Q, heat is in the form of energy, so you can take the value of U and put it here, then you will integrate it, integrate कहाँ से कहाँ करोगे, टेम्परेचर की लिमिट है, so T1 से T2 इंटीग्रेट करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, देन अगेन आपकी इक्वेशन आ जाएगी टेम्परेचर के फॉर्म में, ये इक्वेशन थी वॉल्यूम के फॉर्म में, ये इक्वेशन है टेम्परेचर के फॉर्म में। सो दिस मींस कि एक्सपेंशन इन हीटिंग में कंपोजिट प्रोसेस हो रही है, दैट मींस कंपोजिट मींस टू थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, आइदर द टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ हमने टेम्परेचर वॉल्यूम को कंसीडर किया है, इसीलिए आपका जो फॉर्मूला है एंट्रोपी का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वन फॉर्मूला इन वॉल्यूम, अनदर फॉर्मूला टेम्परेचर वाले पे आप कैसे अराइव हुए हो, ये उसका डेरिवेशन था। सो दिस इज द फॉर्मूला कि T2 फाइनल है, T1 इनिशियल है, ठीक है। नाउ आपका ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, इस क्वेश्चन पे अपन देखते हैं, इस पूरे यूनिट के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, अभी अपन देखते हैं क्या क्या है। नाउ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, अनदर पॉइंट, सो फेज ट्रांजिशन मींस सॉलिड लिक्विड, फेजेस क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सेकेंड ईयर में यू विल स्टडी फेज इक्विलिब्रियम, उसमें आप देखोगे तो फेज आर सॉलिड लिक्विड गैसेस, ओके। सो सॉलिड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड कब, जब मेल्ट होता है,
लिक्विड इनटू वेपर, कब कब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, वो प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन। या vaporization. Yes. So there is change in what phase? So this change in phase is called as phase transition. और जो टेम्परेचर पे ट्रांजिशन होगा that will be equals to what? phase temperature. And इससे रिलेटेड जो एंट्रोपी होगी that is the change of entropy जो कि phase transition में हो रही है for 1 mole of substance from one physical state to another physical state is what? Entropy of phase transition. So this is for example, ये transition के लिए दिया हुआ है, TR means यहाँ transition है, so entropy का formula is Q by T, है ना? Now it is valid for when only two phases are in equilibrium. Further we know that for a process at constant pressure पे आपकी heat is equals to enthalpy, so आप इसको replace कर दोगे H से. Now अगर आपने वेपराइजेशन लिया है मतलब लिक्विड और गैस वाले फेज को कंसीडर किया है, सो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन को डिनोट कर रहा है VAP. दिस मींस इट इज फॉर लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू गैस. नाउ फ्यूजन, if it is for fusion then this means solid is converting into liquid. Okay, this is fusion. So delta H is the enthalpy, S is the entropy, and the entropy of condensation of vapor, that is vapors again liquid या drops में convert होंगे, that process is condensation. So condensation के लिए it is negative है entropy क्योंकि vapor से liquid में आ रहा है ना? vapor का क्या होता है? entropy ज्यादा होती है, इसलिए it is negative for what? condensation reaction. Now the criteria, yes, ये समझ आया? इतनी बात समझ आई? पहले ये बताओ, समझ आ रहा है? यस मैम। Yes. Yes, iPhone. Yes. Who is iPhone? Tell me your name. नगमा. नगमा, आप अपना नेम चेंज करो ना, iPhone से नगमा करो उसको. Yes. What about you, Shivam and Adit? Yes मैम, क्लियर है. Yes. Now spontaneity and entropy का क्या रिलेशन है, उसके लिए किस प्रोसेस के लिए क्या होती है? So see, you know that हमने अभी तक क्या पढ़ा? एनर्जी एंट्रोपी do not serve as the criteria of determination of spontaneity. That means हमने सबसे पहले इंटरनल एनर्जी देखी, उसके बाद हमने एंथैल्पी देखा, उन दोनों का रिलेशन देखा और हमने ये इस कंक्लूजन पे आए कि सिर्फ ये दो फैक्टर को हम स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया के लिए नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए एक नया क्राइटेरिया दैट वाज एंट्रोपी. एंट्रोपी बहुत हद तक स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करती है, बट यू विल सी एंट्रोपी के बाद एक और क्राइटेरिया आता है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी. एंड गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पे आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है. So entropy and delta G are the two factors which are very very important while explaining the criteria of spontaneity. So अभी हम देखते हैं enthalpy, entropy that is S and spontaneity का क्या कैसा relation. So you know that कि entropy एक state function है और उसको हमने criteria for spontaneity explain किया. Now we have to see कि reversible process, irreversible process में क्या होती है entropy. So अच्छा ये बताओ, will you study this? क्या खुद पढ़ लोगे ये चीज? सेम है, साइक्लिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल है. यस शिवम, saying something? मैम ये है कि हमारे पास बुक ही नहीं मैम मिला है हमें तो. ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं. So सेम चीज है, since we are asking studying what? Isothermal reversible, that means at constant temperature. Reversible expansion है. Then isothermal reversible compression है, and then second is what? Compression and reversible expansion again in the isolated system. Irreversible. That was reversible and this is irreversible. So let's see. So cyclic isothermal means process started from here again coming back to here. That is cyclic. So you have to consider what? एक आइडल गैस है, उसका इनिशियली V1 वॉल्यूम है, इट इज इन अ सिलेंडर, इस सिलेंडर में भरी हुई है,
ठीक है, उसके ऊपर पिस्टन है मींस पुश करेगा. सो सिस्टम इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर T, दैट इज इन अ थर्मोस्टेट में हो रही है. नाउ इफ गैस एक्सपेंड हो रही है गैस, मतलब क्या हो रहा है, इनिशियली V1 था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज होके V2 हो रहा है. सो जब एक्सपेंड हो रही है गैस, सो इट विल एब्सॉर्ब सम हीट एंड that will be equals to Q reversible from the surrounding, and the associate entropy change will be what? System की entropy, system ने heat absorb की, expand हुई gas, Q reversible amount of heat was equals to, या सराउंडिंग से इसको इतनी हीट मिली है ना, ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहीं से तो एब्जॉर्ब करेगा, दिस Q reversible अपॉन T, ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम. नाउ सराउंडिंग ने तो लॉस कर दी ना हीट, कि सिस्टम ने सराउंडिंग से ली, तो सराउंडिंग के लिए इट विल बी नेगेटिव. ठीक है, सराउंडिंग ऑल्सो लॉसेस हीट इक्वल्स टू माइनस Q इन अ रिवर्सिबल वे, एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस. नाउ व्हाट द टोटल एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की बराबर को ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल एंट्रोपी आ जाएगी. सो एडिंग दिस क्या आ जाएगा, 0. यस, this means, what does this means? Let's see. Once the gas has been reversibly expanded to V2 under isothermal condition, we reversibly compress it to volume again V1. अभी expand हो गई गैस, आपने उसको फिर से compress कर दिया V1 में, isothermal condition चल रही है. In such case क्या हुआ, सराउंडिंग ने, ये ऊपर वाले केस में सराउंडिंग ने हीट लॉस की, बट यहाँ पे when you again compress it in such a way, in such a thing, system would lose heat equals to minus Q reversible. Now जब आप उसको again compress करोगे तो यहाँ पे आपका system lose करेगा कितनी, minus Q heat, और surrounding आपकी absorb करेगी. So ये system के लिए हो गई, ये surrounding के लिए हो गई. मैम Yes. अगर नेगेटिव साइन होता है तो डिनोट करता है कि स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है शायद. देखो वो चीज होती है, जब हमने एंथैल्पी पढ़ी थी तो ये होता है, अगर नेगेटिव होती है दैट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बट अभी नेगेटिव साइन और स्पॉन्टेनियस का रिलेशन आप कोरिलेट मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे. व्हेन यू विल स्टडी गिब्स फ्री एनर्जी, देन आई विल टेल यू कि माइनस साइन क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट नहीं करता. यहाँ पे माइनस साइन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन को डिनोट करता है. हर जगह माइनस साइन अलग अलग चीजों को डिनोट करता है. जैसे अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स 1 पढ़ा होता तो आई सेड कि वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम प्लस से डिनोट करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं. ओके ओके मैम. यस. सो अभी आपने क्या किया था, अभी गैस एक्सपेंड हो रही थी है ना, अभी यहाँ क्या हो रहा है, आप कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस कर रहे हो तो सिस्टम आपका लूज कर रहा है हीट, और वही अमाउंट हीट सराउंडिंग एब्सॉर्ब कर रही है. सो अगेन दिस विल इक्वल्स टू व्हाट, टोटल एंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0. So total entropy in an isolated system for isothermal reversible compression is 0. In isothermal reversible expansion also 0. So what is the conclusion? The conclusion is entropy change in a cyclic process is always 0. समझ आ रही है बात, साइक्लिक प्रोसेस में क्यों 0 हुई? Yes? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है. एक ही है, और रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट लॉस हीट गेन इक्वल अमाउंट में है ना, एक हीट लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है. सो साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंजेस 0. नाउ दैट वाज रिवर्सिबल. नाउ वी हैव टू स्टडी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन. So again you are taking a idle gas in a cylinder fitted with a piston, volume V1, final volume V2. थर्मोस्टेट में आपने इसको रखा हुआ है क्योंकि आइसोथर्मल हम पढ़ रहे हैं. So let us assume that gas expands against zero pressure. Means उस पर कोई प्रेशर नहीं लगाया जा रहा है. It means free expansion है. आप उस पर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हो तो there is free expansion. So what is happening कि irreversible process है. ओके कोई प्रेशर ही नहीं लगा रहे हो, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. इनिशियली वॉल्यूम क्या होगा, V1 V2. इन दिस केस
we have discussed before also कि change in energy is delta U equals to 0 in irreversible process. So work will also equals to 0. So what will be equals, this is the first law. So first law के according आपका energy 0 है, work 0 है, तो क्या है, heat भी 0 हो गई. Now heat absorbed by the system from the surrounding is 0. However, as per the definition of entropy, entropy क्या होती है, Q by T. But what we have seen, first law के according Q is equals to 0, है ना. मतलब जो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, दैट इज नथिंग, मतलब वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा. सो सिंस सराउंडिंग लॉस्ट नो हीट, द एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग विल बी 0. नाउ टोटल एंट्रोपी चेंज इन इररिवर्सिबल एक्सपेंशन विल बी व्हाट, सराउंडिंग प्लस सिस्टम. सो सराउंडिंग की 0 थी, सिस्टम की हमने मान के रखी है क्या, ये. सो व्हाट विल बी, सराउंडिंग की या इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल्स टू Q by T. But once the gas is irreversibly expanded to volume V2 under isothermal condition, और आप उसको अगेन कंप्रेस कर रहे हो V1 वॉल्यूम में अंडर सिमिलर कंडीशन, अभी ये एक्सपेंशन के लिए थी, नाउ आपने क्या किया, उसको रिवर्सिबली कंप्रेस किया. सो दिस फॉर्मूला आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, क्या होगा, एंट्रोपी चेंज, इसमें क्या होगा आपका, सिस्टम वुड लूज हीट इक्वल्स टू माइनस Q and the surrounding, so surrounding will absorb, surrounding absorb कर रही है, so this is plus, system ने loss किया, so this is negative. Here also what you have seen, compress किया आपने जब, तो system ने क्या की, loss की heat, है ना, loss की, surrounding ने absorb. So again when you will plus this, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 0. So total entropy change for the isothermal reversible compression would be equals to 0. And overall process for cyclic, जो आपने ऊपर cyclic process देखी थी, उसमें भी क्या थी, 0 थी, reversible expansion, reversible compression दोनों में. So what you have seen that the overall entropy change in a cyclic process involving an irreversible step in an isolated system is positive. This means कि जो आपकी इररिवर्सिबल प्रोसेस थी उसमें आपकी एंट्रोपी चेंज क्या थी, पॉजिटिव थी. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 केसेस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इन द आइसोलेटेड सिस्टम, अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया, क्या हो रहा है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग increases in case of spontaneous process. This is very very important. Spontaneous process में आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है. Spontaneous process मतलब अपने आप हो रही है. It is an irreversible process. Irreversible इसलिए क्योंकि spontaneous process अपने आप होगी and it will lead to the formation of product. It will not again change into reactant. So entropy of the system plus the surrounding increases for spontaneous process, that is irreversible process. In other words, you can say that total entropy of the universe increases in an irreversible process and remains constant for reversible process. So this is saying कि greater than का sign है, मतलब increase हो रही है, and also surround total entropy जो है, it always increases. So आपने अभी irreversible process देखी, irreversible process में भी आपकी जो surrounding की, ये देखो, ये था ना entropy change in an irreversible expression, आपकी entropy की वैल्यू पॉजिटिव आई थी. So this is important and you can conclude what कि irreversible process में ही आपकी entropy बढ़ती है. समझ आ रहा है बात? साइक्लिक प्रोसेस में 0 0 थी, irreversible एक्सपेंशन में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली कि नहीं मिली? पॉजिटिव थी ना ये वैल्यू, थी कि नहीं थी? यस मैम. यस मैम. यस. जहां जहां आपने रिवर्सिबल पढ़ा वहां वहां क्या था, डेल्टा एस वॉज 0, है ना, था ना? यस मैम. So this assumption and this entropy वाला rule
एक्सप्लेन करता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो दिस लॉ वी विल स्टडी टुमारो एंड थर्ड लॉ. ओके, मेरे ख्याल से अभी इसमें 2 क्लास और लगेगी. सो वी विल स्टडी सेकेंड लॉ टुमारो. इस चीज को अच्छे से रिवाइज करके आना. पूरा सेकेंड लॉ सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी पे बेस्ड है. इसका स्टेटमेंट भी देख लो. सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस for spontaneous process or for irreversible process. This is the statement, and this can come in exam. State the statement of second law. ठीक है. And these are the statement अलग अलग साइंटिस्ट ने सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए दी. क्लॉसियस ने, केल्विन ने, प्लैंक ने, लेविस ने, ये सारे स्टेटमेंट दिए आपके. Yes, Nagma. So channel name is Grab Up Skills. Grab Up Skills BSc. Search for BSc. Okay. ये बात समझ आई बच्चों आज? All the first year students, all 7 students. समझ आई? Yes. यस मैम. Yes. मैम ये डेरिवेशन कितने मार्क्स में आती है? का डेरिवेशन 3 मार्क्स मैक्स टू मैक्स, या 2 मार्क्स. अगर 5 मार्क्स में आएगा तो आपका 2 प्रोसेस पूछ सकता है. इरिवर्सिबल भी पूछ सकता है, रिवर्सिबल भी पूछ सकता है ना? यस मैम. यस. यस नगमा, समझ